In this video, we will study about the range searching. जैसा नाम से पता चल रहा है कि हम उन वैल्यूज या उन रोज को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो किसी रेंज के अंदर फॉल करती है. ठीक है. इफ यू वांट टू सेलेक्ट द वैल्यूज दैट इज within the range, then we will do range searching, and for that between operator is used. The between operator allows the selection of rows that contain values within a specified lower and upper limit. तो between rows between operator उन rows को select करेगा जो उन values को contain करती हैं lower और upper limit. इस lower और upper limit के बीच में जो भी values आएंगी वो सारी rows हमारी select हो जाएंगी. And one important thing to be noted is that lower and the upper value is also included in the result set. और जो दो values को link करेगा वो है हमारा and keyword. The two values are linked with the keyword and. Let's see an example. Select. This is syntax. I am writing the syntax. Select के साथ क्या आएगा? कॉलम नेम 1, कॉमा, कॉलम नेम 2, कॉमा, and so on. Then what comes after select? From comes. और from के साथ हम क्या लिखते हैं? टेबल का नाम. So from table name. Next where में हम क्या देते हैं? हम देते हैं कंडीशन. तो where अब हम कंडीशन देंगे. कॉलम नेम ठीक है, कॉलम नेम, देन द ऑपरेटर बिटवीन वैल्यू 1 and value 2 semicolon. That is, this is the syntax of the between operator. Select के साथ जो भी कॉलम्स हम अपने आउटपुट में डिस्प्ले करना चाहते हैं, the names of the columns, कौन सी टेबल से हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उस टेबल का नाम, और वेयर में कंडीशन. कॉलम पर हम किस कॉलम की वैल्यूज पर हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे उस कॉलम का नाम, बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2. तो जैसा भी मैंने कहा, जो दो वैल्यूज है वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 इज लिंक्ड विद द कीवर्ड एंड कीवर्ड से ज्वाइन होंगे. लेट्स सी एन एग्जांपल. देयर इज list the employee names whose salary falls between 35,000 to rupees 65,000. हमें वो सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए जिनकी सैलरी 35,000 से 65,000 के बीच में आती है. तो इसके लिए क्या क्वेरी होगी? सिलेक्ट कॉलम का नाम. तो हमें एम्प्लॉय के नेम्स चाहिए, तो मैं सिर्फ दे रही हूं ई नेम फ्रॉम. कौन सी टेबल है मेरी? ये एम्प्लॉय टेबल है. देन नाउ कम्स द कंडीशन. वेयर में सबसे पहले हमें क्या लिखना है? कॉलम का नाम. तो कॉलम कंडीशन क्या है? सैलरी पर हम इस कॉलम पर कंडीशन लगा रहे हैं, वेयर सैलरी. देन कॉलम के बाद बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन वैल्यू 1, that is between 35,000 and 65,000. Between 35,000 and 65,000 semicolon. This query is over. तो वो सारे एम्प्लॉय के नेम्स आ जाएंगे जिनकी सैलरी 35,000 और 65,000 के बीच में आती है. 35,000 और 65,000 वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी आउटपुट में.
So this will be the result. The names are Simran, Shilpi, Rekha, Daksh and Kavish. Let's see in our table. 15,000, does it fall in the range 35 to 65? No, this will not be selected. Is it between 35 to 65? False. Is it between 35 to 65? Yes, the lower value is also included, that is 35. Next, is it between 35 to 65,000? Yes. 55,000? Yes. 20,000? No. 40,000? No. 65,000? Yes. 65,000 is the upper value which will also be included in the result set. Then 30,000? No. So how many rows? 1, 2, 3, 4. 4 names will be displayed like Simran, Shilpi, Rekha and Kavish. Sorry, Daksh is also there. 40,000. I have done this wrong. 40,000 also falls between 35,000 and 65,000. So output will be this. That is Simran, Shilpi, Rekha, Daksh and Kavish. Now we can write the same query using the relational operator. जरूरी नहीं है इस query को आपको between operator से ही करना है. You can write the same query with a relational operator as well. Like आप इस line को ऐसे लिखेंगे और सिर्फ ये 2 लाइन्स तो सेम रहेंगी, ये लाइन चेंज होगी और सैलरी is greater or equals to 35,000 and salary is less or equals to 65,000 semicolon. So the same query can be written with between operator as well as with the relational operators less than equals to. These are the relational operator, this is the logical operator. Both operators we are using. तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको between operator यूज करना है. It is your choice. So this is the output. Let's see the next operator which is not between operator. नाम से पता चल रहा है not between. That is, it will display the values which is not between this particular range. तो उसका opposite होगा, between operator का opposite है not between. And जो ये है that is the between operator can be used with both the character and the numeric data types. जो between operator है उसको हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं. कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं और न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं. तो न्यूमेरिक डेटा टाइप से हमने चेक कर लिया. नाउ कम्स द कैरेक्टर. ये मैंने आउटपुट पहले लिख लिया. दैट इज लिस्ट द एम्प्लॉय नेम्स नॉट बिटवीन सिमरन एंड अंकिता. वो सारे एम्प्लॉय के नेम्स चाहिए जो सिमरन और अंकिता के बीच में नहीं आते हैं. सो व्हाट विल बी द क्वेरी? सिलेक्ट ई नेम from employee where अब कंडीशन क्या आएगी? कॉलम का नाम. कॉलम का नाम क्या लेंगे? एम्प्लॉय नेम हमने क्वेश्चन में दिया है. सो वी विल राइट ई नेम. हमें सेम वही नाम लिखना होता है जो हमने टेबल क्रिएट करते समय दिया था. हम पूरा एम्प्लॉय नेम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मैंने टेबल बनाते समय ई नेम दिया था. तो वेयर ई नेम दैट इज अ कॉलम नेम हो गया. फिर ऑपरेटर आ जाएगा मेरा दैट इज नॉट बिटवीन. नॉट बिटवीन आ गया. नाउ वैल्यू 1. वैल्यू 1 क्या है? सिमरन. कैरेक्टर से तो आई विल राइट इट इन, पुट इट इन सिंगल कोट्स. सिमरन एंड अंकिता. So this is the query for this question. वो सारे एम्प्लॉय के नेम्स एम्प्लॉय टेबल से जो सिमरन और अंकिता की इस रेंज में फॉल नहीं करते हैं. तो इसका आउटपुट आएगा रोहित, कमल, दक्ष, कविश एंड लता. लेट्स सी द टेबल. दैट इज सिमरन एंड अंकिता. तो दिस इज सिमरन एंड दिस इज अंकिता. तो इस रेंज के अलावा जितने भी वैल्यूज हैं दैट विल बी डिस्प्लेड. दैट इज रोहित, कमल, then Daksh, Kavish and Lata. 1, 2, 3, 4, 5.
5 values will be displayed, that is Rohit, Kamal, Daksh, Kavish and Lata. Now we will study the topic or the searches which are based on a list. जब हमें वो रोज सर्च करनी है, सर्चिंग हमारी बेस्ड होगी जब लिस्ट पर, दैट इज मल्टीपल वैल्यूज पर, देन वी विल यूज दिस ऑपरेटर विच इज नोन एज इन ऑपरेटर. जब भी हमें एक किसी वैल्यू को कंपेयर करना है कई सारी वैल्यूज से, दैट इज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज से, देन वी विल यूज द इन ऑपरेटर. इक्वल्स टू ऑपरेटर कब यूज होता है? इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज होता है जब हमें एक सिंगल वैल्यू को कंपेयर करना है दूसरी सिंगल वैल्यू से. देन इन दैट केस वी यूज इक्वल्स टू ऑपरेटर. बट हियर वी वांट टू कंपेयर अ वैल्यू with the list of values, so we will use the in operator. The in operator helps reduce the need to use multiple or conditions. इन ऑपरेटर का फायदा ये है कि हमें मल्टीपल और कंडीशंस नहीं लगानी पड़ेंगी. ठीक है, लेट्स सी, वी विल सी दिस इन एग्जांपल. सो नाउ आई एम राइटिंग द सिंटेक्स ऑफ द इन ऑपरेटर. The syntax for the in operator will be select column name 1, column name 2, and so on. Depends, you can take as many columns you want. Next is from table name. Next is where clause. where के साथ कंडीशन आती है तो उस कॉलम का नाम जिसको मुझे कंपेयर करना है लिस्ट ऑफ वैल्यूज से, वो एक कॉलम का नाम, देन द ऑपरेटर दैट इज इन ऑपरेटर, और फिर वैल्यूज दैट इज वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन. जितनी भी आप वैल्यूज, एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे, यहाँ पर ही लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन. सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इन ऑपरेटर. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल क्वेरी के लिए एग्जाम्पल है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम बैंगलोर, कोलकाता एंड चंडीगढ़. मीन्स कंपनी को वो एम्प्लॉयज के नेम्स चाहिए जो बैंगलोर, कोलकाता या चंडीगढ़, किसी भी एक सिटी को अगर कोई भी एम्प्लॉय बिलोंग करता है इन 3 सिटी नेम्स में से, तो उसका नाम रिजल्ट सेट में आना चाहिए. सो फॉर दिस द क्वेरी विल बी select asterisk. You can write e name also, list the employees. You can take e name also. I am taking asterisk. Asterisk means all the columns or fields will be displayed of the table. From कौन सी टेबल से चाहिए? एम्प्लॉय टेबल से चाहिए. कंडीशन, कंडीशन क्या है? कंडीशन है दैट इज वेयर कॉलम का नाम. क्या कॉलम का नाम है? सिटी, क्योंकि हम सिटी पर सर्च करेंगे. वेयर सिटी इन, दैट इज कॉलम नेम सिटी इन. नाउ वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, पैरेंथेसिस स्टार्ट. पहली वैल्यू क्या है? बैंगलोर. As it is in characters, I will put it in single quotes, comma value 2. value 2 है कोलकाता, कोलकाता, and then value 3 that is चंडीगढ़. round bracket close, semicolon. So this is this way you can write the query.
वेयर सिटी मतलब एक सिटी को कंपेयर करेगा इस पूरी लिस्ट में। इस लिस्ट में हमने 3 नाम दिए, बैंगलोर, कोलकाता एंड चंडीगढ़। तो एज वी सी इन द टेबल, what will be the output? That is कोलकाता। सिटी इज कोलकाता, ट्रू, ये रो डिस्प्ले हो जाएगी। सिटी इज बैंगलोर, ट्रू, हमारी लिस्ट में है, सो दिस विल बी डिस्प्ले। हैदराबाद, हैदराबाद इज इन आवर लिस्ट, नो। नल, नल मीन्स शिल्पी डज नॉट बिलोंग्स टू एनी सिटी, किसी भी सिटी को बिलोंग नहीं करती है। रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इस कॉलम पर हमने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया होगा, तो बाय मिस्टेक इस कॉलम पर शिल्पी के लिए कोई वैल्यू एंटर नहीं की गई होगी, इसलिए यहाँ पर क्या है, नल है। नेक्स्ट सिटी, इज इट कोलकाता, ये हमारी लिस्ट को बिलोंग करती है, यस। हैदराबाद लिस्ट को बिलोंग करता है, नो। चंडीगढ़, यस। चंडीगढ़, यस। बैंगलोर, यस। तो 1 2 3 4 5 6 rows will be displayed, that is Rohit, Kamal, Rekha, Daksh, Kavish and Lata. These names or these employees belongs to the city either to Bangalore, Kolkata or Chandigarh. So output will be this: Rohit, Kamal, Rekha, Daksh, Kavish and Lata. So this is using the in operator. इस सेम क्वेरी को हम और ऑपरेटर से भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि इन ऑपरेटर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द नीड टू यूज मल्टीपल और कंडीशंस। हमें मल्टीपल और कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इन ऑपरेटर से करते हैं। तो अगर हम इस सेम क्वेरी को और ऑपरेटर से करते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, मैं यहां पर लिख देती हूं, वेयर सिटी इज इक्वल्स टू बैंगलोर और सिटी इज इक्वल्स टू कोलकाता और सिटी इज इक्वल्स टू चंडीगढ़। तो यहां पर तो हमारी सिर्फ 3 सिटीज हैं। सपोज अगर 10 सिटीज के नेम्स होते तो बार बार हमें सिटी इज इक्वल्स टू बैंगलोर और सिटी इज इक्वल्स टू सेकेंड सिटी और थर्ड सिटी और फोर्थ सिटी और 5 सिटी और 6 सिटी एटसेट्रा एंड सो ऑन। सो इट्स बेटर टू यूज द इन ऑपरेटर। आपने सिटी लिख दिया एक बार, इन, अब ये पूरी लिस्ट, यहाँ पर आपको 10 सिटीज के नेम देने पड़ेंगे, तो अपने आप एक एक सिटी रो की कंपेयर हो जाएगी। दैट इज यहाँ पर किस वैल्यू लेगा? सिटी की, दैट इज कोलकाता। कोलकाता इज इन दिस लिस्ट, यस। बैंगलोर, नेक्स्ट इज बैंगलोर, बैंगलोर इज इन दिस लिस्ट, यस, ट्रू। तो जो भी रो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ट्रू होगी, the answer will be displayed in the result set. So this I have shown you with the or operator. Next, not in operator. In operator का opposite है, that is it will display the values which are not in the list. जो list हम specify कर रहे हैं query में, उसके अलावा जो भी values हैं वो display हो जाएंगे। I'm taking the same example like which we have taken earlier in the previous query. Display the list of employees who do not belong to Bangalore, Kolkata and Chandigarh. Who do not belongs to, वो सारे employees की list चाहिए जो बैंगलोर, कोलकाता और चंडीगढ़ को belong नहीं करते हैं। इसके अलावा जो भी कोई और सिटी है इन 3 सिटीज के अलावा, वो सारी आपके आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगे। So how we will write this query? Same way as we have done previously. That is select asterisk from employee where city not in Bangalore, Kolkata, Chandigarh. यहाँ पर हमने not लगाया है, means इस list को जो belong नहीं करता। इन 3 cities के अलावा जो भी cities हैं वो आउटपुट में डिस्प्ले
हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी सिमरन एंड अंकिता. Simran and Ankita, that is the employees with ID 3 and 6 are those employees who do not belongs to Bangalore, कोलकाता और चंडीगढ़. इन तीनों सिटी को बिलोंग नहीं करते हैं. तो हमारी टेबल के अकॉर्डिंग ये दो एम्प्लॉयज आ जाएंगे. हमारी टेबल ये थी, इसमें कोलकाता, बेंगलोर ये हमारी लिस्ट में है, तो इसके ये डिस्प्ले नहीं होगा बिकॉज वी हैव पुट नॉट, वी हैव यूज्ड नॉट इन ऑपरेटर. तो नॉट कोलकाता, नॉट बेंगलोर, देन कम्स हैदराबाद. यस, ये हमारी लिस्ट में नहीं है तो इट विल बी डिस्प्लेड. नल, नल ये वैल्यू रो सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ना तो कोलकाता लिखा है, बेंगलोर और चंडीगढ़, ये तीन वैल्यूज से कंपेयर करेगा, ये उसको बिलोंग नहीं करती है. नल वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेगा कंपाइलर. नेक्स्ट कम्स कोलकाता, तो इट विल नॉट बी डिस्प्लेड. कम्स हैदराबाद, yes it will be displayed. So in the whole table there are two employees, Simran and Ankita, who do not belongs to Bangalore, कोलकाता and चंडीगढ़. बाकी सारे employees इन cities को belong करते हैं.